All right, let's move forward. Let's start off with commodities. We've already done the question on hedge funds. We are supposed to be starting off with the commodities. I think we are moving back to the LOS before. We are supposed to start off with the commodity section. Now, before I get to the book and I start talking about every single line, तो सबसे पहला चीज commodities में which you need to understand is why we want to invest in commodities. What is the asset class commodity all about? How do we invest in commodities? And commodities और equity में ऐसा difference क्या है? So let's understand the commodity, थोड़ा सा practical perspective से पहले, उसके बाद में we'll get into it. Now the idea of investing in commodities is basically two. पहला inflation hedging के लिए and दूसरा diversification के लिए. Now when you're looking at commodities बोलते ही अपने को दिमाग में क्या आएगा? Gold. मतलब first thing that comes to your mind is commodity investment, मतलब ही gold होता है. But now you have to understand that commodities investment is not restricted to gold alone. There are multiple different kinds of investment avenues in commodities. You can have precious metals, जिसका part gold है. Gold, silver, platinum, etc. They are all a part of precious metals. You can group commodities into base metals, zinc, lead, aluminium, copper. All these will be your base metals का part. You can have agricultural products. Agricultural में भी सब categories possible है. Pulses and jawar, bajra, ragi, wheat, etc. We classify all of that into your agricultural based products. You can have energy based products where your oil, crude oil, natural gas, etc. वो सारा चीज आ सकता है, right? So when you're looking at commodities, it is not gold and silver only, which अपने लोग को practically थोड़ा सा तुरंत वही दिखता है कि gold and silver है. Now when you're looking at commodities, when you're looking at agricultural commodities, say for example, now you would want to hedge yourself against the inflation. What do you understand by hedge yourself against inflation? आज say suppose आज के दिन price of pulses, I don't know, कुछ 60 rupees per kg है, let's say, of some दाल का cost is equal to 60 rupees per kg today. Now I would want कि अगर मेरे को option मिले कि ये दाल का price same ही रहेगा every year on year basis पर, don't you think I would have, मेरे को inflation से डर नहीं लगेगा. अब मेरा salary जितना भी increase हो नहीं हो increase, मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता, because I am going to be able to restore my purchasing power. Even if I have the exact same salary, if the goods and services ka prices are the same, I will be able to consume the same amount of goods and services regularly. That is possible when? That is possible when the saman ka price is not increasing, goods and services ka price is not increasing. But ideally the price of goods and services increases and money loses its purchasing power. 100 rupees आज जो सामान खरीद सकता है, 1 year के बाद 100 rupees कम सामान खरीद पाएगा, because the same saman is going to cost you 105, 108 depending on the inflation rate. So money loses its purchasing power because of inflation. The first class we were talking about discount rate. We talked about real return, inflation premium and risk premium. Real return was a compensation for deferred consumption. Inflation premium was a compensation for loss of purchasing power. So I want to hedge myself against inflation. आज inflation अगर ज़्यादा होगा तो मेरे पैसे का कीमत नीचे जाता है. Because the same amount of wealth is going to be able to, the same amount of money is going to be able to buy less amount of goods and services. So yes, it creates an issue for me, it creates a problem for me. So I do not want, मतलब मेरे को inflation से problem है, तो मैं inflation से अगर suppose say for example inflation 5% है और मेरा 5% return कहीं से आ जाए, अगर inflation 7 हुआ तो मेरा 7% return आ जाए, अगर inflation 2 हुआ तो of course I'll have to manage with, I will get a return of 2%. If something of this sort can be done, तो मेरे को inflation से डर लगना बंद हो जाएगा. Because जितना सामान महंगा उतना ही रिटर्न मेरा, so therefore I am hedged against inflation. मेरे को inflation से hedging हो गया है, मेरे को inflation का risk से इतना दिक्कत नहीं है, इतना problem नहीं है. I'm kind of hedged against your inflation. So what am I looking at over here? I'm trying to understand, I'm trying to seek inflation hedging मतलब क्या? I'm scared of something, उस चीज से, जिस चीज से डर लग रहा है कि inflation ज्यादा हो जाएगा, सामान ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो मेरा रिटर्न भी ज्यादा आ जाएगा. So in that case मेरे को फिर फर्क नहीं पड़ेगा inflation से. Because if inflation is 6%, I'm earning 6%. If inflation is 2%, I'm earning 2%. So ज़्यादा inflation होगा, सामान ज़्यादा महंगा होगा, तो मैं तो सामान ही खरीद के रख लूँगा. If I'm investing in commodity, think about it. When I'm investing in commodity, मैं तो सामान ही खरीद के रख रहा हूँ. I'm investing in commodity. I'm investing in the सामान. So don't you think it is going to work as a very good inflation hedge? Because gold, silver, जो भी commodities में आप invest किए हो, if that will increase kind of inflation के हिसाब से. So inflation hedging के लिए commodities is a very good tool to hedge against inflation. कि डर लग रहा है महंगाई से, सामान ही खरीद के रख लो. हाँ, now there are issues with this. आप जवार बाजरा, wheat and rice and all घर पे खरीद के नहीं रख सकते next 10 years का consumption के लिए.
दे आर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, रखोगे कहां? 10 साल का कंजम्पशन का सामान अभी खरीद लोगे? इट्स नॉट पॉसिबल. सो इट्स नॉट ईजी. अब गोल्ड सिल्वर में तो फिर भी इट्स फाइन दैट आई कैन टेक एन एक्सपोजर बाय बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज आई कैन कीप इट. उसमें भी इश्यूज है, लॉकर में रखना होगा, लॉकर के चार्जेस लगते हैं. गोल्ड सिल्वर इम्प्योरिटी हुआ तो. सो येस, नाउ वी हैव बेटर वेज कि यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ऑनलाइन एज इन ETF के फॉर्म में. ETF पोर्टफोलियो में कवर्ड है. ETF मतलब इंस्टेड ऑफ बाइंग फिजिकल गोल्ड, जैसे शेयर्स अपने बैंक, शेयर्स हाथ में थोड़ी होता है, शेयर्स इज देयर इन द डीमैट अकाउंट. सिमिलरली गोल्ड कैन ऑल्सो बी देयर इन द डीमैट अकाउंट. तो जितना गोल्ड बढ़ेगा, जितना गोल्ड गिरेगा, योर गोल्ड ETFs विल ऑल्सो बी बिहेविंग लाइक दैट. एक बार इमेजिन करो, आई नो ETF इज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, आई हैव नॉट डन दैट, बट एक बार जस्ट इमेजिन इन द सेंस दैट कि आपका जो गोल्ड या सिल्वर या जो भी कमोडिटी है वो नोशनल तरीके से, मतलब एक डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो इंक्रीज डिक्रीज जो होगा वो आपका वर्थ है. मतलब इफ आई हैव इन्वेस्टेड 2 लाख इन गोल्ड, मैं जब भी चाहूं, अगर 2 लाख का गोल्ड बिकम्स 2,20,000, आई कैन सेल इट एट 2,20,000. तो गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर उस तरीके से वो ट्रेड करेगा. सो इट्स इन अ डीमटेरियलाइज फॉर्म दैट यू कैन ओन गोल्ड इंस्टेड ऑफ फिजिकली ओनिंग इट, बिकॉज फिजिकली ओनिंग गोल्ड हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज. इंश्योरेंस लेके रखो, चोरी हो गया तो घर पे रख लिए. बैंक लॉकर में डाले, बैंक लॉकर में भी चोरी हो सकता है. ऑल्दो वी शुड नॉट थिंक अबाउट दैट, बट यू विल हैव चार्जेस फॉर द बैंक लॉकर when you're looking at gold. So, and gold, silver और बाकी में तो आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं ले सकते हो. You're scared that the electricity bill will go up, oil prices will go up. अभी थोड़ी ऑयल घर पे लाके रख सकते हैं. So that creates a problem. So we need better avenues or more avenues to also make investments in commodities. So one, we understood that yes, I want to invest in commodities. That is because of the inflation issue. So inflation के against में protection काफी अच्छा मिल जाएगा commodity का, तो it's great. I should go ahead with it. Now investment के तरीके में प्रॉब्लम आ रहा है because I cannot keep the commodity at home. You know what I can do? Commodity में there are multiple ways in which you can take exposures in the commodities. One of the ways is physically own करना, gold लाके घर में रख लिया, बैंक लॉकर में रख लिया, silver लाके रख लिया. But you cannot do that with agricultural products or with energy related products. So then what do we do? I'd say for example I want to take oil में exposure. ONGC का shares खरीद लीजिए. ONGC पूरा का पूरा कंपनी ऑयल के बारे में है. So you get an exposure to oil. You want an exposure in the commodity coal. You take an exposure in Coal India. You need Nalco, Balco, aluminium के लिए. So there are multiple different Vedanta, Sterlite, मतलब Sterlite हो गया Vedanta. So you have multiple companies जिसके through आप commodity में exposures ले सकते हो. There are certain companies who are very much specific. आपको रबर में exposure चाहिए, आप टायर का कोई कंपनी खरीद लो, आपको रबर में exposure मिल जाएगा. You take टी में, कॉफी में एक्सपोजर, तो टी का कॉफी वाला कंपनी, प्लांटेशन रिलेटेड जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो द एक्सपोजर कैन बी टेकन डायरेक्टली आइदर बाय ओनिंग द कमोडिटी और इनडायरेक्टली थ्रू ओनिंग द इक्विटी एज वेल. एंड देयर विल बी अदर वेज ऑल्सो, लाइक वी हैव म्यूचुअल फंड काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो फॉर कमोडिटीज. वी विल डिस्कस दैट लेटर. अपने जब आएंगे डिटेल्स में एक एक पॉइंट में अपने डिस्कस करेंगे. बट वी हैव एन इशू विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज बिकॉज कमोडिटी को होल्ड करना रखना इज नॉट ईजी. इक्विटी, बॉन्ड्स एक्सेट्रा डीमैट अकाउंट में पड़ा है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. बट देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हेन आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन कमोडिटीज व्हिच वी नीड टू एड्रेस. सो द वन बेनिफिट व्हाई आई लाइक टू इन्वेस्ट इन कमोडिटीज इज इन्फ्लेशन के कारण. द सेकेंड रीजन इज डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन कैसे? वी अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन 2 डिफरेंट स्टॉक्स, अगर दोनों साथ में ऊपर नीचे जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो ऐसे मूव करता है. बट अगर 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा 2 स्टॉक्स या कमोडिटी एंड इक्विटी, लेट्स से कि इक्विटी ऊपर गया, कमोडिटी नीचे गया, इक्विटी नीचे गया, कमोडिटी ऊपर गया, दे विल बैलेंस आउट ईच अदर एंड माई रिस्क इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. सो येस, आई वुड वांट दैट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट. नाउ व्हाई डू वी से दैट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट के लिए कमोडिटी इज वेरी गुड? कमोडिटी से डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट कहां से आ रहा है? हाउ डू आई गेट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट फ्रॉम दी कमोडिटीज का इन्वेस्टमेंट? सो कमोडिटीज का इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट इसलिए आएगा बिकॉज द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी एंड कमोडिटी आर डन ऑन वेरी 2 डिफरेंट बेसिस. आज इक्विटी का वैल्यूएशन, शेयर्स का वैल्यूएशन, ऑल वील स्टडी इन इक्विटी सब्जेक्ट, बट जनरली इक्विटी का वैल्यूएशन हैपेंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. कोई भी चीज का वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी में स्टार्ट कर लिए थे अपने काम. कोई भी चीज, प्रेफरेंस शेयर्स का याद करो, वो एग्जांपल किए थे टीवीएम में. यू हैव फ्यूचर कैश फ्लोज, परपेचुइटी का फॉर्मूला से वी गॉट द प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन. कोई भी चीज का वैल्यू इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. कोई भी चीज का वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. द वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. नाउ से फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी का इस साल का बहुत ही खराब प्रॉफिट है, माइनस में आ रहा है प्रॉफिट, उसका वैल्यूएशन तो नेगेटिव नहीं होगा ना. कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है, हो गया इस साल नुकसानदेह, माइट हैव बीन सम इश्यूज, बट कंपनी का वैल्यूएशन तो फ्यूचर कैश फ्लोज पे डिपेंड करेगा.
आज टुडे सपोज मारुति सुजुकी का शेयर प्राइस मे नॉट बी डूइंग वेल, डज नॉट मीन कि मारुति सुजुकी विल नेवर डू वेल. वी नो दैट द वॉल्यूम्स ऑफ द काइंड ऑफ कार्स एंड वॉल्यूम्स जो उनका मारुति सुजुकी कंपनी का है, मारुति का, उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन काफी हाई है. तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट खराब हो भी गया तो इतना फर्क नहीं पड़ता उसको, बिकॉज द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स इज बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. इट्स मोर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. बट कमोडिटी का वैल्यूएशन, आज से फॉर एग्जांपल देयर इज अ फ्लड इन आवर एरिया, लेट्स से 4-5 दिन बहुत बारिश हुआ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लड. इमीडिएटली यू विल सी टमेटो विल बी 40 रुपीज का 80 रुपीज हो जाएगा. कितना का होता है? एनी आइडिया टमेटो का प्राइस? नो आइडिया, नो वन. अच्छा 65 चल रहा है. ओके, so 60 का let's say there is a flood for a while or something, and then 60 becomes 120. Even though you know कि future supply तो टमेटो हो जाएगा, अभी तो बारिश हुआ है, floods हुआ है, इसके कारण prices have increased, but you know that it is going to get normalized in the future. Yeah, it's fine. You should know the prices and all. You should know the basic prices. It's very important. अरे टमेटो शॉर्ट सेलिंग अभी मत पूछो यार, जो बता रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. तो हम टमेटो का शॉर्ट सेलिंग पे चला गया. अब दो करो, नेस्ले में करो. नेस्ले का एक छोटा सा पार्ट है मैगी सॉस, उससे टोमेटो का करो. ऐसा नहीं होगा. नेस्ले इज अ वेरी बिग कंपनी, केचप वुड बी वेरी स्मॉल. यू हैव टू सी व्हाट परसेंटेज इज द प्रोडक्ट एंड ऑल. एंड टोमेटो शॉर्ट सेलिंग एंड ऑल विल थिंक लेटर. यार नहीं होगा, वो बहुत पेरिशेबल हो गया ना. पल्सेज एंड ऑल यू कैन स्टोर फॉर अ ईयर एंड ऑल. राइस वगैरह ग्रेन्स क्या है कि आप उसको स्टोर कर सकते हो थोड़ा टाइम के लिए. टोमेटो वगैरह कहाँ से स्टोर करने का, उस पर नहीं होगा. सो एनीवेज, द ऑब्जेक्टिव वाज दैट टोमेटो का द प्राइसेस विल बिकम डबल इमीडिएटली व्हेन द फ्लड इज. जबकि आपको पता है कि 4 दिन बाद प्राइस कम हो जाएगा. आप देखिए कोई फेस्टिवल आएगा, फ्लावर्स का प्राइस डबल कर देते लोग, जबकि उन्होंने फेस्टिवल के अगले दिन इट्स गॉन अगेन कम बैक टू नॉर्मल. सो बेसिकली द वैल्यूएशन ऑफ कमोडिटी इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर कैपेसिटी, रिस्क कितना है, कैसे डिस्काउंट करेंगे, कैसे वैल्यू करेंगे, मॉडल क्या होगा वैल्यूएशन का. नहीं, इट्स डिमांड एंड सप्लाई. द मोमेंट द डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस विल इंक्रीज, और द मोमेंट द सप्लाई विल गो डाउन द प्राइस विल इंक्रीज. सबको पता है दिवाली के टाइम पे गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है यहाँ पे, बिकॉज द डिमांड गोज अप. द मोमेंट देयर इज अ फ्लड और एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी और समथिंग, इन दैट केस देयर इज अ, और जरा सा भी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, कुछ भी होता है. अभी अनियन का प्राइस देखो 1880 कैसे कैसे फ्लक्चुएट करता है. I'll give you an example. Onion का एक बार बीच में there was this website Groupon, which is I think now nearby. So Groupon करके वेबसाइट था, वो 80 रुपीज का जब अनियन था 15 रुपीज में ना 18 रुपीज में बेच रहा था ऑनलाइन ऑफर में. Now the point is that when someone goes to buy the onions at 18 rupees, even if you've sold let's say 20 रुपीज का अनियन 80 में बेचा, तो 60 का नुकसान कंपनी को. I'm थोड़ा डिविएट कर रहा हूँ, ऐसे ही याद एग्जाम्पल बता रहा हूँ. तो 60 रुपीज इज दी मार्जिन, मतलब इज द लॉस पर केजी. 100 किलो भी अगर आपने बेच दिया ऑनलाइन तो 60 into 100 कितना होता है? 6,000 रुपया. 6,000 रुपीज फॉर अ मार्केटिंग. डोंट यू थिंक इट इज अ वेरी लो अमाउंट? थिंक अबाउट इट. ऑब्जेक्टिव अनियन बेचना थोड़ी, अनियन के भरोसे जो बाकी चीज लेकर के जाएगा ताकि शिपिंग कॉस्ट जीरो हो जाए. सो अंडरस्टैंड, देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केटिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रांडिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स अराउंड यू. You have to start noticing, you have to start observing these things. अभी कोई एक्टर का मूवी निकलने वाला होता है तब वो अचानक से सब चीज पे ओपिनियन बांटना चालू कर देगा, अदरवाइज उसके बारे में कोई कुछ पढ़ा ही नहीं है. सो start, and it's very important that we guys, we educated people start understanding the reality of things. We start looking beyond the intention of advertisements, markets, strategy, companies, people. So ये सब चीज देखना बहुत जरूरी हो गया अब. So you have to be smarter in terms of observing and realizing these things. Anyways, getting back. So the commodity का उस समय अनियन का प्राइसेस हुआ था ना, वापस से कम हो गया ना. आज प्राइसेस देखो, रिसेशन के टाइम पे ऑयल का प्राइसेस देखो, इट वेंट अप टू $140 per barrel, टच $20 per barrel post recession, and again went up $70-80 per barrel. So when we are looking at this commodity and equity, don't you see दोनों kind of उल्टा direction में move कर रहा है. When inflation is going to be high, commodity का prices high होगा, prices high होगा, raw material का price high होगा, तो equity का valuation गिरेगा कि बढ़ेगा? गिरेगा. Agreed? Now you will say कि अच्छा raw material का price बढ़ेगा तो finished goods का भी price बढ़ा देंगे. But even if finished goods का price बढ़ा, just think about it. Even if finished goods का price बढ़ेगा, don't you think the demand will go down and the volumes will go down? One, I'm saying if inflation is happening, raw material का prices will go up, therefore your margins will go down. Your argument would be that ठीक है, हम raw material का price बढ़ेगा तो हम finished goods का भी price बढ़ा देंगे. आप finished goods का अगर price बढ़ाओगे तो volume कम नहीं हो जाएगा. So total में तो profits will go down, right?
in totality, when you're looking at it overall perspective से, the profits will go down, right? So when inflation happens, commodity का price बढ़ेगा, लेकिन equity का valuations गिरेगा. देखो multiple ways में देख सकते हैं. When inflation goes up, discounting rate will go up, go down or not affected. When inflation rate goes up, the discount rate goes up, goes down or it's not affected. Goes up. Discount rate का components क्या था? Real part, inflation part, risk premium part. तो कोई भी चीज का valuation क्या होता है? Discounting future cash flows. So if inflation goes up, raw material goes up, margin goes down. या फिर if inflation goes up, finished goods का भी अगर price बढ़ा दियो तो कम से कम volumes में तो खराब होगा. And if inflation goes up, your discounting rate goes up and your valuation of the company today goes down because कोई भी चीज का value is equal to present value of future cash flows. इसका मतलब whenever inflation is happening, equity shares are reacting in an opposite direction or a same direction. Opposite direction, inflation ऊपर, equity shares का valuation नीचे. और जब inflation ऊपर होगा तो commodity का price बढ़ेगा कि गिरेगा? बढ़ेगा. The term inflation का ही मतलब यही है, increase, consistent increase in prices of goods and services. So जब equity खराब हो रहा है, commodity अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है? अच्छा कर रहा है. Because when inflation is happening, commodity is doing better and equity valuations are going down. So in that regard, can we say कि इक्विटी कमोडिटी दोनों में पैसा डालो, एक बढ़ेगा एक गिरेगा, बैलेंस आउट करेगा एंड वी विल हैव अ रिलेटिवली लोअर रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. बिकॉज अपने लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी नॉट लुकिंग एट कि कमोडिटी में क्या इन्वेस्ट किया, कमोडिटी में क्या रिटर्न आया. वी डोंट लुक एट जस्ट वन पर्टिकुलर एसेट क्लास. हम लोग पूरा पोर्टफोलियो एज अ होल देखते हैं. मैं ये नहीं देखता कि ये स्टॉक से क्या रिटर्न, ये स्टॉक से क्या रिस्क. अच्छा, इसको ऐड करने से रिटर्न तो थोड़ा ही बढ़ रहा है लेकिन रिस्क बहुत कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव कोरिलेशन. डोंट यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ स्टॉक? So we always look at it from a portfolio perspective. So when we make a portfolio, we talk about equity, we talk about fixed income, we talk about alternate investment classes. And within alternate investments, we've got so many categories. So the objective of investment is diversification. मेरा portfolio का risk कम होगा, sigma p कम जाएगा, क्योंकि correlation कम है, correlation low है, negative भी हो सकता है. And दूसरा is inflation hedge. These are the two reasons, primary reasons why I want to invest in commodities. बोले, is everybody clear? Is everybody understanding this? Sure? हाँ. Commodity मतलब gold, silver, agricultural products and all. And how to take exposure, I'm coming to that. Your question is कि नहीं, अगर inflation markets में in general high है तो share prices गिरेंगे. Now when I'm saying prices high मतलब ये नहीं कि आज खाली onion का price बढ़ गया कल तो इसके लिए market गिर जाएगा. It's not based on one commodity. When I'm talking about inflation, I'm talking about a bouquet of commodities. In general, all the commodities taken together, if the inflation increases, equity share prices will react adversely. But again, when I'm looking at, say for example, I'm looking at only one commodity, oil, तो obvious सा बात है, ONGC को ज़्यादा फर्क पड़ेगा than the entire equity market. तो वो चीज़ है. But in general, अगर inflation high हो रहा है, तो equity markets would be, we'll be looking at losses at in the equity market. बोलिए, making sense? एक बार बुक में आते हैं. किसका फोन? कमोडिटीज में आइए. फर्स्ट लाइन देखना, इन्वेस्ट डायरेक्टली इन कमोडिटीज, दैट इज वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग. नेक्स्ट लाइन मार्क करना, डेरिवेटिव्स के थ्रू उसके ऊपर 2 लिखो, दैट इज द सेकंड वे ऑफ इन्वेस्टिंग. आई एम कमिंग टू द डेरिवेटिव्स, व्हाट इज इट. नेक्स्ट लाइन देखना, कमोडिटीज देमसेल्व्स आर फिजिकल गुड्स, incur cost for storage, transportation. Returns are based on price changes and not on income stream. Not on income stream circle करो. Put an arrow and write. मैं समझा रहा हूँ, एक बार लिखो. Not on income stream को circle करके put an arrow and write. Not an investment asset but a consumption asset. Not an investment asset but a consumption asset. Dash. Not an investment asset but consumption asset. Dash. Unlike equity and bonds. Unlike equity and bonds. See, the first method, the first way of investing is directly commodity कर लो, invest कर लो. But उसमें gold, silver के beyond you'll not be able to go. और क्या घर पे तो नहीं रख सकते ना, ऑयल, नेचुरल गैस कहाँ से रखोगे घर पे? Not possible. So the first way of investing in commodities, and that is why gold, silver and these become the most common ways of investing in commodities. The second method I've already discussed was कि आप ऐसा companies में invest करो which is kind of commodity linked equity shares, commodity linked companies में.
यू वांट टू टेक एक्सपोजर इन सीमेंट, सीमेंट का कंपनी खरीद लो. So whatever kind of commodity you want to take an exposure in, you try to get exposure in a related company, an equity share which is primarily on that company के ऊपर based है. तीसरा मेथड यहाँ पे derivatives दिया हुआ है. Derivatives is not done. Derivatives is a separate topic altogether. Now I have to give you a very quick brief outline of derivatives. नहीं समझ में आएगा, just don't bother about it because introduce करने में derivatives मेरे को 3 घंटा लगेगा. So once I do derivatives, you'll get this part clear. But there is a lot of linkages with derivatives. So basically what happens is, suppose I want to invest in oil. Derivative क्या होता है? Derivative को एक तरीके का betting की तरह treat करिए, that I'm taking on a bet. So let's say मैं bet लगा रहा हूं कि $80 का oil ऊपर जाएगा. I'm getting into this bet today, time 0 पे, and it is a bet जो मैं 3 months के लिए लगा रहा हूं. Just observe. I'm getting into a bet that oil prices will rise. And मैंने bet लगाया $80 पर. Today is time 0. मैंने bet लगाया 3 months के बाद के लिए. अब 3 months के बाद if the oil price is 85, I won the bet or lost the bet? Won the bet. कितना bet में win करूंगा? $5. अगर market price turns out to be $73, I won the bet or lost the bet? Lost the bet. Now कितना dollars lose किया मैंने bet में? $7. So this kind of betting can be done. That is through derivatives. So basically बिना एक्चुअल में खरीदे, क्या मैंने खरीदा था क्या ऑयल? मैंने खाली बेट लगाया था. I did not buy the oil actually. I had just entered into a bet that oil price will go up or oil price will go down. I had just simply entered into a bet. Correct? Now when I entered into a bet, तो वो $80 का इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं हुआ? मैंने तो बेट लगाया कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. Now just imagine, had I purchased the oil at 80 and it became 85, मेरा 5 का प्रॉफिट होता. Had I purchased oil at 80 and वो 73 हो जाता, मेरा लॉस होता $7 का. बट बिना परचेज किए या सेल किए आई एम गेटिंग द सेम 5 का प्रॉफिट और 7 का लॉस. So without actually having to buy the commodity or sell the commodity, I can get exposures like this by entering into a kind of betting transaction. Because commodity को रखना घर पे possible नहीं है हर समय. So that is why we enter into something called derivatives. Derivatives क्या है नहीं है वो सारा चीज derivative subject में होगा. It's a different subject altogether. Derivatives is a subject altogether. आपने 80 पे bet लगाया तो आपको 85 क्यों मिलेगा? And even if you sell at 85 तो 80 तो पहले का लगा हुआ है आपका, तो profit तो 5 ही होगा. Even if the selling price is 85, you have paid 80 earlier, right? So your profit is only 5. Profit आप 85 कैसे बोल सकते हो, right? So this सचमुच का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इस तरह का एक्सपोजर्स ले सकते हैं. आप बेट लगा सकते हो कि बढ़ेगा कि गिरेगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली और पे ऑफ कैन बी डिपेंडेंट ऑन दैट. एनीवेज, लेट्स नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ इट, बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट आई कैन गेट इनटू बेट्स एंड ऑल, और इंक्रीज डिक्रीज वगैरह पे मैं बेट लगा सकता हूँ. बढ़ेगा गिरेगा, बेट लगा लिया, जितना बढ़ेगा उतना आएगा. क्रिकेट मैचेस पे बेट नहीं लगाते क्या? आइडियली नहीं लगाना चाहिए, बट पीपल डू दैट, राइट? सो ऑन द आउटकम ऑफ दैट योर exchange is happening. वो जीता तो वो पैसा देगा, वो हारा तो वो पैसा देगा. That kind of stuff can happen. That is what we are looking at. So अभी देखो, so that is the next one कि अपने derivatives के through भी investment कर सकते हैं. So one investment का तरीका is directly commodity. Second is your equity shares that is based on commodity, and the third one is through derivatives. Derivative subjects में होगा. Next part is that returns are based on price changes and not on the income generated. Now understand, when I'm buying equity shares, एक तो equity share का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है तो उससे भी फायदा होगा. Second, I also get dividends, correct? When you're looking at bonds, I also get a coupon payment, I also get an interest payment regularly, and at the same time, bonds का भी valuation ऊपर नीचे हो सकता है. Equity valuation equity subject में है, bond valuation bond के subject में है, but that can happen, correct? But commodity के केस में gold तो अंडा देगा नहीं, उससे recurring return तो आएगा नहीं. It is only the gold coin का price can increase or decrease. It cannot give out dividend. It cannot give out interest. It cannot generate money. It cannot generate income. So when you are looking at commodity, they are consumption asset. वो use कर सकते हैं, वो investment asset नहीं है वैसे. They are consumption asset. अब gold, silver वगैरह को investment बोल सकते हैं अपने लोग, but ideally when you are looking at agricultural energy and all those, you can consume the asset. But वो income generating asset नहीं है. But when you are looking at equity shares, bonds and all, they become income generating asset. वो इनकम जनरेट करेगा. देयर इन्वेस्टमेंट एसेट्स, देयर कैपिटल एसेट्स.
बोलो, फॉलोइंग द आइडिया. सो देयर वैल्यूएशन अगेन विल बी डिफरेंट. बोलो, ओएनजीसी का शेयर्स अगर आप बात कर रहे हो तो दैट कैन गिव डिविडेंड. वो कमोडिटी नहीं है. ओएनजीसी का शेयर्स इज नॉट कमोडिटी, इट्स इक्विटी. यू आर ट्राइंग टू गेट एन एक्सपोजर टू कमोडिटी थ्रू दैट इनडायरेक्टली. ओएनजीसी का इन्वेस्टमेंट इज नॉट कमोडिटी इन्वेस्टमेंट, बट सिंस मेरे को ऑयल में इन्वेस्ट करने का कोई और तरीका नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू टेक एक्सपोजर इन ऑयल बाय इन्वेस्टिंग इन ओएनजीसी. ओएनजीसी को आप कमोडिटी नहीं बोल सकते. इट्स कमोडिटी लिंक्ड इक्विटी, एक ऐसा इक्विटी शेयर जिसका वैल्यूएशन इज वेरी क्लोजली गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइसेस ऑफ ऑयल, बट यू कैन नॉट कॉल इट अ कमोडिटी इन्वेस्टमेंट. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए. नेक्स्ट पैराग्राफ का पूरा फर्स्ट लाइन से ब्रैकेट करके लास्ट लाइन तक ब्रैकेट करके उसके साइड में डेरिवेटिव्स लिख दीजिए. वंस यू आर डन विद डेरिवेटिव्स यू डोंट इवन नीड टू बॉदर अबाउट दिस पैराग्राफ. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स. एक एक डेरिवेटिव समझाने के लिए 2-3 घंटा लगेगा. सो दिस इज पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, यू डोंट नीड टू वरी. दिस पैराग्राफ वंस वी आर डन विद डेरिवेटिव्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पार्ट में आइए. मेथड्स ऑफ, नेक्स्ट जो है बुलेट्स दिया हुआ है उसके ऊपर वाला लाइन मार्क करना. मेथड्स ऑफ एक्सपोजर टू कमोडिटी, वी जस्ट डिस्कस्ड अ पार्ट ऑफ इट. कैसे कैसे कमोडिटी में एक्सपोजर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. 1 इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, 2 इज इक्विटी डायरेक्टली लिंक टू अ कमोडिटी, 3 इज मैनेज्ड फ्यूचर्स में समझाऊंगा, 4th इज इंडिविजुअली मैनेज्ड अकाउंट्स, एंड लास्ट वन स्पेशलाइज्ड फंड्स इन स्पेसिफिक कमोडिटी सेक्टर. देखो, एक तो अपने कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन कमोडिटी, गोल्ड खरीदो, सिल्वर खरीदो. नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. नाउ व्हाट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? Portfolio में we are going to discuss it in detail. Now you understand mutual funds, right? Mutual funds क्या होता है? We put in small amounts of money, क्योंकि अपने पास बहुत सारा पैसा नहीं है कि पोर्टफोलियो मैनेजर अफोर्ड करे. You can put in as low as 500 rupees, and वो जो अमाउंट आपने फंड में इन्वेस्ट किया फिर इतना बड़ा कॉर्पस हो जाता है, द फंड का वैल्यू बिकम्स सो हाई, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स बिकम्स सो हाई, इन्वेस्टमेंट बिकम्स सो हाई दैट अ पोर्टफोलियो मैनेजर कैन देन मैनेज एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल. दैट इज व्हाट अ म्यूचुअल फंड इज. बट द प्रॉब्लम इन म्यूचुअल फंड इज कि आप एनी टाइम म्यूचुअल फंड का शेयर्स को बाई सेल नहीं कर पाओगे. मतलब यू डोंट नो द प्राइस ऑन अ रियल टाइम बेसिस फॉर अ म्यूचुअल फंड का शेयर्स. आप आज शेयर्स खरीदो म्यूचुअल फंड का, आपको शाम को पता चलेगा कि किस प्राइस पे आया है, बिकॉज म्यूचुअल फंड वाला भी तो पूरा दिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं. द म्यूचुअल फंड कंपनीज आल्सो बाइंग सेलिंग शेयर्स एंड ऑल थ्रू आउट द डे. So how can they give you a real time basis price? So every day the pricing is disclosed for a mutual fund share. Now what happens is exchange pay, let's say we are talking about the index Nifty. So we have 50 stocks in Nifty. So 50 big companies of the country, they are put together into an index. So we are looking at the 50 companies together कैसे perform कर रहा है. अभी क्या होता है, म्यूचुअल फंड में तो क्या है, द पोर्टफोलियो मैनेजर को देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक अच्छा है उसको बाई करो, कौन सा स्टॉक खराब है उसको सेल करो. द पोर्टफोलियो मैनेजर हैज टू डू ऑल दीज थिंग्स. बट व्हेन आई एम लुकिंग एट एन ईटीएफ, नाउ व्हाट इज एन ईटीएफ? तो जिस तरीके से वन स्टॉक रिलायंस का स्टॉक है, भेल है, मारुति है और आईसीआईसीआई, द वे ऑल द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग 930 to 330 in the market. Similarly, what we can see is, what we can do is, the 50 stocks together can also trade in the market. अरे प्लस प्लस कर दो ना सारा 50 स्टॉक का वैल्यू को. So ETF is an exchange traded fund. अब नाम से समझने का ट्राई करो. It's a fund that is trading on the exchange. It's like group of 50 stocks together trading on the exchange. It is like a group of 50 stocks trading on the exchange जिसका रियल टाइम बेसिस पे आपको मार्केट प्राइस पता है. आप 930 to 330 के बीच में at any point of time you can buy the shares, you can sell the shares, you can do whatever you want. बोलो, following the idea? That's an exchange traded fund. म्यूचुअल फंड में द मैनेजर विल फाइंड आउट कि कौन सा अच्छा कौन सा खराब, बाई सेल बहुत चीज करेगा वो. बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ऐसा नहीं है. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज यू ग्रुप ऑल द 50 स्टॉक्स टुगेदर एंड द 50 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग थ्रू आउट द डे. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज वेयर यू आर ग्रुपिंग ऑल द 50 स्टॉक्स टुगेदर एंड वो अपने आप मार्केट में ट्रेड करे. उसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा स्टॉक को बाय करो, खराब स्टॉक को सेल करो एंड ऑल दैट. यू आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ दैट. बोलिए, इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? श्योर? गेटिंग दिस पार्ट? Now, when I'm looking at the next bit, commodities का exchange traded fund is as if like gold, silver ये सब चीज का एक फंड बना दिया. तो अभी वो फंड की तरह ट्रेड कर रहा है. It's not that I have to own gold and silver at home. It is those group of commodities trading together on the exchange and you can trade on it. You can do the buying and selling throughout the market hours. उससे ज्यादा एक बार मत इसमें जाओ because ETF, because see, I told you in level 1 there are multiple subjects which are very interconnected.
ना ETF पोर्टफोलियो में होगा, इक्विटी बॉन्ड वैल्यूएशन इक्विटी फिक्स इनकम सब्जेक्ट में होगा. लेवल 2 यू नॉट हैव दिस प्रॉब्लम, एंड लेवल 1 ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. यू विल बी एबल टू पुट टुगेदर एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ द सिलेबस, राइट. थोड़ा इंटरकनेक्शन सारे सब्जेक्ट्स में है, हल्का फुल्का इधर उधर. So when I'm talking about ETFs, it's as if a group of commodities are trading on the exchange, like stocks. As if, you can take this down, it'll be easier for you to understand later. It is as if group of commodities are trading on the exchange like shares. As if group of commodities are trading on the exchange like shares. अभी गुड टिल हियर. द नेक्स्ट वन इज योर इक्विटी. एक सेकेंड, कुछ बताना था नहीं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज योर इक्विटीज दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू कमोडिटी. वी ऑलरेडी डन दैट. ONGC, कोल इंडिया, नैल्को, बैल्को, एल्यूमिनियम में लेना है तो जिस टाइप का एक्सपोजर लेना है उस टाइप का कंपनी में इन्वेस्ट कर दो. यू विल गेट एन एक्सपोजर टुवर्ड्स दोज कंपनीज. बट देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. लास्ट लाइन देखना, उसमें लास्ट 2 लाइन्स. प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द स्टॉक एंड द प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द कमोडिटी मे नॉट बी परफेक्टली कोरिलेटेड. मार्क करो, समझा रहा हूं. Now what happens is when I'm looking at commodities, the issue is, see, when I'm talking about the correlation of equity with commodity, the correlation is very low. So therefore diversification benefit is happening. Equity and commodities बहुत अलग तरीके से मूव करेंगे, therefore बहुत सारा diversification benefit आएगा ना. Correlation कम है, sigma p low, and therefore diversification will happen. You've done probability में this part sigma p, probability वाले चैप्टर में. Now the problem क्या होता है, जब मैं correlation देख रहा हूँ इक्विटी मार्केट, मतलब सपोज इक्विटी मार्केट इन जनरल देख रहे हो, निफ्टी का बात कर रहे हो, पूरा मार्केट ऑन एन एवरेज का बात कर रहे हो आप. So when I'm looking at equity market as a whole, and then I'm trying to find out the correlation with, let's say, ONGC or any of the companies like a commodity linked. कमोडिटी लिंक्ड इक्विटी शेयर. अभी प्रॉब्लम क्या होगा ना कि इनका कोरिलेशन इज वेरी लो, बट इनका कोरिलेशन मे नॉट बी लो, क्योंकि आई अग्री दैट येस इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑयल प्राइस और द कोल प्राइस और वट एवर शेयर यू यूज, बट अल्टीमेटली है तो इक्विटी शेयर. तो इसके ऊपर में जो मार्केट के फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करते हैं, वो मार्केट फैक्टर्स इस कंपनी को भी अफेक्ट करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? Investing in gold is not the same as investing in a Tanishq or a Gitanjali or a Kalyan Jewellers ka share price, because that Kalyan Jewellers ka share price will be affected by multiple other factors. And yes, I agree that gold is a very important factor, but don't you think the factors are going to be market कैसा है, interest rates वगैरह कैसे हैं, loan rates कैसा है, management कैसा है, marketing कैसा है, branding कैसा है. There are going to be 1000 factors that affects your markets, that affects your Kalyan Jewellers ka prices. But gold being a very important factor, I agree, but there are 1000 other factors. So Kalyan Jewellers ka share price does not exactly move like gold. वो बाकी और भी factors से बहुत affected है. Tell me, are you understanding this part? So therefore, when I'm talking about the correlation between gold and equity market, Nifty का बात कर रहे हैं. Let's say I'm talking about gold and Nifty, तो correlation is very low. बट जब भी मैं बात कर रहा हूं, लेट्स से निफ्टी एंड कल्याण ज्वेलर्स का, इन दैट केस द कोरिलेशन इज हायर एंड मेरा सिग्मा पी भी हायर है, तो देयरफॉर नॉट सो मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. सो यस, आई वांट टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी इन ऑर्डर टू गेट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट. डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज I cannot invest every time direct commodity. I cannot just buy gold and keep it at my house. So I have to take commodity linked exposures. I have to invest in equity shares which are commodity linked. But उसमें I know it's a good idea कि equity shares के through I am getting exposure to commodities. But उसका disadvantage भी है because equity shares do not exactly behave like commodity. Equity share prices are not going to move exactly like gold. They may have a higher correlation with the other क्या बोलते हैं, with the market in general. So आपने जिस reason के लिए commodity में invest किया था, diversification, that is not happening to the extent that you wanted to. बोलो, following problem. Sure, getting the idea. Intention ही यही था ना diversification के लिए commodity में invest करना, वही काम नहीं बना अपना.
वही चीज नहीं हुआ ना अल्टीमेटली, बोलो, गेटिंग इट? So that is your commodity linked equity का disadvantage. The prices may not move exactly like the commodity. They might be more correlated with the market at large and may not provide the diversification benefit which you were looking for. बोलिए, understood? Managed futures में आइए, उसके साइड में make this. Take this, I'll explain. Done? Done, guys? So basically what's happening in case of a managed futures is, over here
So small investors can also make investments, can make small investments amount, lower investment amounts, और वो लोग को ग्रेटर लिक्विडिटी मिलेगा बिकॉज छोटा छोटा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये लोग आपस में एक दूसरे को बाई सेल कर सकते हैं बिकॉज यू मेड स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स. बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको सेल करने में डिफिकल्टी होता है. व्हेन स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी बिकॉज यू कैन सेल योर शेयर्स टू ईच अदर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दीज स्मॉल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन अ फंड. इस फंड को, ये मैनेज फ्यूचर्स है बेसिकली. नाउ ये फंड क्या हुआ, ये फंड अभी प्रोफेशनली मैनेज्ड होगा बिकॉज देयर आर सो मेनी स्मॉल इन्वेस्टर्स हु पुट इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ओवर हियर. स्मॉल डाला, बन तो गया ना ह्यूज बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल इन्वेस्टिंग इन इट. नाउ ये फंड को एक प्रोफेशनल मैनेजर मैनेज करेगा. अब प्रोफेशनल मैनेजर क्या मैनेज करेगा, इसको कैसे मैनेज करेगा, वो कमोडिटी फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करेगा. नाउ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूचर्स. फ्यूचर्स इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स. सो कमोडिटी में एक्सपोजर डायरेक्टली अपने ले नहीं सकते, ले सकते हैं बट इट्स नॉट प्लॉजिबल, राइट, एंड स्पेशली व्हेन यू आर लुकिंग एट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड ऑल. गोल्ड सिल्वर में तो फिर भी ले लिया बट बाकी में तो यू कैन नॉट टेक अ डायरेक्ट एक्सपोजर इन द कमोडिटी. आपको इनडायरेक्टली कुछ बेटिंग के थ्रू, कुछ डेरिवेटिव्स के थ्रू लेना पड़ता है. दे आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स. बेसिकली क्या बोलते हैं ना अपने, फ्यूचर्स है. थोड़ा सा आइडिया देता हूं. लेट्स से आई गेट इनटू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि 6 months के बाद में आई विल बाय गोल्ड फ्रॉम यू एट 30,000 पर 10 ग्राम. सपोज आई एम गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस विथ यू. सॉरी, नाउ इफ 6 months के बाद में द प्राइस ऑफ गोल्ड बिकम्स 32,000. आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, 30,000 में खरीदने का. मार्केट में प्राइस 32,000 है. यू कैन बाय एट 30, सेल एट 32. 2,000 इज योर प्रॉफिट, राइट. व्हाट इज द प्राइस बिकम्स 27,000 आफ्टर 6 months. यू हैव डन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एट 30. आपको 30 में खरीदना पड़ेगा and you'll be able to sell it only at 27 and 3,000 will be your loss. Did you actually buy the gold today? No. You just entered into a contract कि 6 months के बाद में खरीदेंगे. तो 6 months के बाद जो प्राइस होगा उसके बेसिस पे देख रहे हो प्रॉफिट लॉस लॉक हो सकता है. So you are doing a contract today. You are doing the contract to purchase gold today. The price is also decided today, but you are executing it at a future time period. यही future contract है. So instead of taking positions in commodity today, which is very difficult, which we cannot, what we do is we try to take positions through these kind of options. We try to take positions in commodities and all through these ways, futures and all के through. तो ये जो fund manager होगा, now we are not competent to do this kind of thing because अपने लोग का रोज का काम ये नहीं है commodity futures करना, commodity को track करना and all. We want to do it for the investment purpose. So we people put in our money in this fund, which is professionally managed. एंड ये प्रोफेशनल मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कमोडिटी फ्यूचर्स के थ्रू कमोडिटी में एक्सपोजर्स ले. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजर, ऑफ दीज प्रोफेशनल मैनेजर्स, दैट दे टेक पोजिशन इन कमोडिटीज थ्रू दीज काइंड ऑफ फ्यूचर्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल. I'll spend a lot of time in forwards, futures and all these things when I do derivatives. But you're having a brief idea, एक rough idea मिल रहा है ना आपको. बाकी फ्यूचर्स में 2-3 घंटे 4 घंटे कम से कम स्पेंड करूंगा. So don't worry about it. But you're getting an idea that how we can take what kind of an exposure we can take. Because commodity it's very difficult to keep it. कैसे oil के ऊपर and all के ऊपर में आप घर पे ले जाके रख सकते हो. So these professional managers are doing this commodity futures. Now ये जो fund है, it can be structured in 2 ways. Either an LLP, limited liability partnership and all, जहाँ पर a few people come in together, form a partnership, and उसके through हो रहा है. Or you can make it in a mutual fund kind of a structure. So अगर पार्टनरशिप होगा तो ऑब्वियसली 20, 30, 50, 70 पीपल विल कम टुगेदर. म्यूचुअल फंड होगा तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल कम टुगेदर. पार्टनरशिप होगा तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा कि छोटा. बड़ा पार्टनरशिप में बड़ा करना होगा. म्यूचुअल फंड होगा वे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग, देन छोटा. विच वन विल हैव मोर लिक्विडिटी, पार्टनरशिप स्ट्रक्चर और म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर? म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर. So when you have very small investments allowed, mutual fund structure में करोगे तो बहुत छोटा investment allowed होगा and there will be a lot of liquidity. But if you do it in a partnership structure, it's going to be relatively less liquidity and ticket size, investment size थोड़ा बड़ा रखना होगा. Partnership form में अगर ये काम हो रहा है तो बोलो clear? Absolutely. Managed futures. Next part, separately managed accounts है. देखो individual managed accounts लिखा है. It's also known as separately managed accounts. उसमें डैश करके लिखना पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज फ्यूचर्स, लाइक मैनेज फ्यूचर्स विद अ पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजर, लाइक मैनेज फ्यूचर्स with a personal portfolio manager for HNIs, with a personal portfolio manager for HNIs.
पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजर लाइक, क्या बोला? नहीं, स्टार्टिंग से क्या बोला? लाइक मैनेज फ्यूचर्स विद पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर HNIs. HNIs हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को HNI कस्टमर्स बोलते हैं, HNI इंडिविजुअल्स बोलते हैं. लाइक HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. सो बेसिकली कुछ नहीं है, सेम चीज है. इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप बनाना या इतना सारा लोग बनाना, Ambani is there, Tata is there, Mr. Murthy is there. So when these kind of people, they want to invest like millions of dollars, don't you think they can afford a personal portfolio manager of their own? बस वही है कि मैं पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजर मेरा जो होगा, he will invest in commodity futures and all. So I don't want to put it in a fund or a partnership or something. मेरे पास खुद के पास इतना पैसा है कि मैं अपना पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजर रखेगा. That is what it is. Separately managed accounts, individual, क्या नाम दिया? Individual managed accounts. Are you getting the idea? So HNIs के लिए, where you have high net worth individuals who want to invest a huge sum of money, so उनके लिए you can have a separate this thing created. बोलो, clear? Everybody understanding the idea? Everyone? So they will have their own personal portfolio manager who's going to invest in commodity futures and all. They don't want to invest in a mutual fund जो अपनी मर्जी से करेगा. Because understand, mutual fund में क्या होगा ना, सब कोई इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड मतलब मैनेज फ्यूचर्स बोल रहा हूं. इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स. आई कैन कॉल इट लाइक अ म्यूचुअल फंड ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स. अभी इसमें क्या होगा, व्हेन वी पीपल इन्वेस्ट, क्या ये मेरे हिसाब से अपना बनाएगा फंड? नहीं, इसका जैसा फंड है वो फंड का गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ही इज गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग. बट व्हेन आई हैव अ पर्सनल मैनेजर, ही विल इन्वेस्ट एग्जैक्टली द वे आई वांटेड टू. मैं बोलूंगा ज्यादा रिस्क लेता हूं, ज्यादा रिस्क लेगा. मैं बोलूंगा कम रिस्क लेता हूं, कम रिस्क लेगा. बोलिए, गेटिंग द आइडिया? That is what we are looking at in individual managed accounts. And the last one is specified funds, specialized funds in commodity sector. तो उसमें just the way we were talking about ETFs and all, जैसे आज मार्केट में म्यूचुअल फंड्स होता है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बिग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, ऑटो लिंक्ड फंड वो ऑटोमोबाइल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, बैंक फंड बैंकिंग फंड जो बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है. सिमिलरली कमोडिटीज में वी हैव स्पेशलाइज्ड कमोडिटी सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स ऑल्सो. You can have a fund which is on precious metals. You can have a fund which is on base metals. You can have a fund which is on agricultural products. You can have fund which is on energy वाला area. So energy वाला fund oil, natural gas, crude oil, मतलब varieties of oil, kerosene, ये सब renewable energies, ये सब चीज में invest करेगा शायद. Are you understanding? So we can have specialized funds within the commodities sectors. Clear till here? उसके बाद में benefits and risk में आइए, ये mostly अपने को आता है already. फोर्थ लाइन एक बार मार्क करना, स्पेक्युलेटर्स कैन अर्न हाई रिटर्न्स ओवर शॉर्ट पीरियड्स. उसके साइड में टेक दिस डाउन. टेक दिस प्लीज.
Take this down and explain. It's a very interesting part. Done. So basically the idea is we are looking at the returns of commodities that is lower than the stocks and bonds ka return. So commodities mein kyun invest kare? When I'm looking at the Sharpe ratio of commodity, that is also less than the Sharpe ratio of stock or bond. RP minus RF by sigma P. Sharpe ratio is done in quants. So whether I'm looking at the returns, वो खराब है. Return, excess return per unit risk, RP minus RF by sigma P, वो भी commodities का खराब है. Risk when I'm looking at the volatility, commodities का वो भी ज़्यादा है. So in either of the three situations, return खराब, risk ज़्यादा, Sharpe ratio खराब, तो commodity तो is turning out to be very bad investment idea. So I do not want to invest in commodities because of this reason. So commodities काफी खराब निकल के आ रहे हैं. And volatility भी इसलिए commodity का high है because I told you demand and supply के basis पे commodity valuation is done. So any short-term shocks in the demand and supply, immediately the commodity prices react. Equity तो long-term future cash flows के basis पे priced है आज के दिन. But commodities react very very quickly. Commodities are very reactive. They are based, their pricing of the commodity and all is based on very short term क्या बोलते हैं, short term जो भी demand supply mismatch होगा उसके हिसाब से commodities immediately react. So in that situation what happens is अपने लोगों को commodity का volatility भी high हो गया. I don't like it. But still commodity का valuation is based on demand supply and equity bond का valuation is based on PV of future cash flows. So now what happens is इन लोग का correlation low है क्योंकि दोनों का valuation का तरीका अलग है. Inflation के against में दोनों उल्टा react करते हैं. Inflation is high, commodity value goes up, but equity bond reacts negatively. Simple सा चीज है, inflation goes up, discount rate goes up, value of equity bond goes down. लिखवा दूंगा ये वाला part भी. So correlation नीचे चला गया. So equity, commodity, bond and all को अलग देखेंगे तो problem है. But when I look at it from a portfolio perspective, when I look at it as a whole, as a portfolio, equity, stock, bond मिला करके, equity, commodity, bond मिला करके अगर देखता हूँ, तो I am seeing that नहीं, Sharpe ratio is increasing and standard deviation of the portfolio as a whole is going down because correlation is very low. So commodity add करने के बाद individually commodity equity को मत देखो, commodity plus equity को मिला करके फिर check करो कि total as a portfolio as a whole what is happening. Because of a lower correlation, therefore the standard deviation of the portfolio is lower, Sharpe ratio of the portfolio increases, and therefore we invest in commodity. The reason being diversification, benefit, and inflation hedge. बोलिए फॉलोइंग. इन्फ्लेशन हेज वाला पार्ट खाली नहीं लिखा हुआ था. यू कैन टेक दिस. इन्फ्लेशन गोज अप,
commodity goes up but discount rate goes up, therefore stock bond goes down. Correlation low, correlation low. Inflation goes up, commodity का values goes up, but discount rate ऊपर जाएगा, therefore stock bond नीचे गिरेगा. That is why correlation is low. So these are the two benefits that happen when I'm investing in commodity: diversification benefit and inflation hedge. See if there's any issue. Inflation up, commodity का ऊपर, लेकिन discount rate ऊपर होने से stock bond नीचे. So therefore correlation is low. Tell me if you are comfortable till here. बोलो बोलो, कहां डाउट है, क्या नहीं समझा? इन्फ्लेशन ऊपर, कमोडिटी ऊपर, डिस्काउंट रेट ऊपर, सो देयरफॉर स्टॉक बॉन्ड नीचे एंड देयरफॉर कोरिलेशन नीचे. आर नीचे, आर गोज डाउन, तभी तो अपना सिग्मा पी गिरा. शार्प रेशियो पोर्टफोलियो एज अ होल इज डूइंग गुड. नेक्स्ट पोर्शन में आइए, कमोडिटी प्राइसेस एंड इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट लाइन देखना, स्पॉट प्राइसेस फॉर कमोडिटीज आर अ फंक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई. वी हैव डन दिस. स्पॉट प्राइसेस मतलब आज का प्राइस. नाउ अगेन डेरिवेटिव्स में आई अगेन बी एबल टू डू इट. अपने क्या डिस्कस किए थे, फ्यूचर्स प्राइस किए थे ना, कि 6 months के बाद में आई बाय दिस, आई बाय दैट एट दिस रेट, वो फ्यूचर प्राइस हुआ. स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, अभी का भी. सो एट व्हाट प्राइस, व्हाट इज द प्राइस राइट नाउ, सो दैट इज योर स्पॉट प्राइसेस. वो डिमांड सप्लाई पे, वी नो दैट. नेक्स्ट लाइन, अफेक्टेड बाय वैल्यू ऑफ कमोडिटी ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से. आज वी हैव सीन ऑयल प्राइसेस साइक्लिकली चेंजिंग ऊपर नीचे जब 2008 का क्राइसिस आया था. टुडे देयर इज सैंक्शंस इंपोर्ट्स कर देंगे आप ईरान के ऊपर, एंड उसके बाद में उसका रेपरकशंस होगा कि ऑयल प्राइसेस मार्केट में ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो उनका कार्टेल बना हुआ है, दैट द गल्फ कंट्रीज एंड ऑल, वो लोग अपना सप्लाई डिमांड ऊपर नीचे करके दे अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ ऑयल ऑल अक्रॉस द ग्लोब. आज रबर प्राइसेस ग्लोबली अफेक्ट होता है, बिकॉज अगर कहीं सस्ता कहीं महंगा तो लोग ट्रेड करेंगे. They will buy from the सस्ता वाला country and they will sell in the महंगा वाला country. So therefore there are a lot of global prices that you need to track. So they are affected by global cycles. आज business cycles do affect the prices. अच्छा, next line, affected by production, storage cost and existing inventory. Now oil का production cost also increased बीच में, तो उसको प्रोड्यूस अगर महंगा हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट, सो पीपल वुड वांट टू डू मोर ऑफ प्रोडक्शन और लेस ऑफ प्रोडक्शन. लेस ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि फायदा कम है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है. स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा है. इफ इट इज टू मच टू कॉस्टली टू स्टोर थिंग्स, तो लोग उसको स्टोर करेंगे कि नहीं यार अभी बेचो, अभी खत्म करो, अभी बेचो, अभी खत्म करो. मतलब इफ द स्टोरेज कॉस्ट इज हाई, यू वुड वांट टू, नहीं यार सस्ता में भी अभी निकाल दो चलेगा, बट स्टोर नहीं करना है, सस्ता में निकाल दो. सप्लाई विल इंक्रीज, प्राइस विल गो डाउन. वी विल डू दीज थिंग्स इन डिटेल्स. वी हैव अ फुल रीडिंग ऑन कमोडिटीज इन लेवल 2. I mean, I also want to do, but यहाँ पर एक पेज में छोड़ दे रहे commodities. Level 2 में it will be in a lot more detail. Then existing inventories. If you have more inventory, अगर अपने पास माल बहुत पड़ा है, तो आप कम प्राइस में बेचोगे, तो ज्यादा प्राइस में बेचोगे. कम प्राइस में बेचेंगे because I want to liquidate my inventory, otherwise inventory खराब होगा, outdated होगा, सड़ जाएगा, perishable अगर product हुआ तो, so that will be a problem. And if my inventory is very short, if I have very poor inventory right now, मैं महंगा प्राइस में बेचूंगा, नहीं खरीदना मत खरीदो. आई विल पे एट अ वेरी हाई, आई विल सेल एट अ वेरी हाई प्राइस बिकॉज आई हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ गुड्स टू सेल. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू डिटर्मिन द प्राइसेस. लेकिन शेयर्स के लिए तो ऐसा नहीं है. देयर इज नो स्टोरेज कॉस्ट. शेयर्स आर डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ, देयर इज नो स्टोरेज कॉस्ट, देयर इज नो इन्वेंट्री का सिस्टम. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट स्टॉक एंड बॉन्ड, दे आर अफेक्टेड बाय वेरी डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स एज कंपेयर्ड टू कमोडिटीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? हेंस द डिफरेंसेस इन प्राइसिंग एंड ऑल. नेक्स्ट पैराग्राफ में आइएगा. फर्स्ट लाइन, सप्लाई इज इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन. अच्छा, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ में लास्ट लाइन छूट गया. अफेक्टेड बाय परचेज एंड सेल ऑफ नॉन हेजिंग इन्वेस्टर्स, स्पेक्युलेटर्स. अगेन लेवल 2 में डिस्कस कर पाएंगे. देयर आर 4 थियोरीज वी नीड टू स्टडी, वी विल नॉट बी एबल टू डिस्कस राइट नाउ. यू कैन इग्नोर दैट लाइन, यू कैन इग्नोर दैट लाइन. नेक्स्ट पैराग्राफ, सप्लाई इज इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन. इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन मतलब क्या?
इनइलास्टिक मतलब क्या? इलास्टिसिटी इज बेसिकली डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी कि पर चेंज इन क्वांटिटी बेस्ड ऑन चेंज इन प्राइस. ना अभी सडनली आप बोलोगे कि आई पे यू एक्स्ट्रा, मेरे को अभी का अभी विद इन 2 days इतना ये मैन्युफैक्चर करके दो, कहां से होगा? यू कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई इन द वेरी वेरी शॉर्ट रन. इन द वेरी शॉर्ट रन द सप्लाई इज इनइलास्टिक. आप बोलेंगे नहीं मेरे को कल का कल इतना ऑयल चाहिए, कहां से ऑयल निकालेंगे? है ही नहीं इतना. लॉन्ग टर्म में येस वी कैन प्लान कि अच्छा ऑयल का सप्लाई इज गोइंग टू बी लोअर इन द फ्यूचर, सो लेट मी गेट टू मोर रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट. सो लॉन्ग टर्म में यू कैन मेक दोज चेंजेस. शॉर्ट रन में यू कैन नॉट चेंज योर सप्लाई एंड डिमांड एंड ऑल. In the short run, your supply is inelastic. You cannot produce infinite quantities suddenly just by asking for a higher price. So next line, so production levels alter नहीं कर सकते इतना. जैसे oil wells है, plants है, crops है, very good example crops. Suddenly बोलोगे कि नहीं मेरे को तो इतना kgs wheat चाहिए, rice चाहिए, तो अभी कहाँ से होगा? You have to give it that 1 year or the 6 months, whatever seasonal cycle is there. उसके बाद में ही जाकर के you can alter production, right? हाँ वो तो 6 महीना लगेगा कि ठीक है I'm going to produce this grains more and this grain less. Land तो उतना ही है. You cannot alter production immediately. Your supply in the short run is inelastic. You cannot change that. Next line, volatile when demand changes significantly. The prices are very volatile commodity का. Demand ज़्यादा करोगे suddenly, कम करोगे demand, उसके हिसाब से prices are affected. Same चीज repeat कर रहा है. Next to next line, significantly affected by weather. That is your agricultural products and all. So prices high होगा when production is low and low prices production is high. We know that. We've seen news and all इस तरीके से कि ओवर प्रोडक्शन भी क्रॉप्स का होता है तो फार्मर्स उसको रास्ते पे फेंकना चालू कर देते हैं बिकॉज इतना सप्लाई हो गया, दे आर नॉट गेटिंग द प्राइस द वर्थ दैट दे डिजर्व. सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन एंड देयर इज अ लॉट मोर दैट नीड्स टू बी डन. एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, सप्लाई, ये सब करना बहुत जरूरी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में. एंड वेदर इज अ डिटर्मिनेंट इन द प्राइसिंग ऑफ कमोडिटी. जस्ट सी हाउ इट इज डिफरेंट, हाउ मच इट इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी एंड बॉन्ड का वैल्यूएशन. वेदर से क्या मतलब है उसको? कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑयल इंक्रीज हुआ तो देयरफॉर इट बिकेम्स मोर एक्सपेंसिव एंड लोग उसको कम कर दिए ऑयल को निकालना. ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्राइसेस ऑफ कॉस्ट माइट हैव इंक्रीज्ड. नेक्स्ट लाइन, एनालाइज इकोनॉमिक इवेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ऑल. से फॉर एग्जांपल इफ इलेक्शंस हैपन, व्हेन द गवर्नमेंट कम्स अप विद द बजट, अगर गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं हम लोग इसको सब्सिडी देंगे फर्टिलाइजर को और समथिंग, देन उसमें क्या डिफरेंस आएगा? से फॉर एग्जांपल इफ द गवर्नमेंट इज गिविंग लेट्स से coal block auction हो रहा है, so how is that going to be affecting? Let's say if the government increases import duty on gold because the government wants to reduce the amount of import that is happening, so in that case gold price will increase. So government policies, regulations, ये सारा चीज भी impact करता है commodity का prices को. Following and next, investors analyze inventory levels. We know that, we've seen that. Forecast of production ज्यादा होगा तो price कम होगा, production कम होने वाला है तो price बढ़ेगा. Changes in government policy, if the government is going to impose duty and all. Expectation of economic growth, if economy में growth ज़्यादा होगा, there will be more demand of steel and all because infrastructure is going to pick up. If you are expecting a very higher growth from the economy, then infrastructure and all अच्छा होगा ना, positive growth दिखाएगा. So steel industry will do well, cement industry will do well, steel के price बढ़ने चाहिए, metals के price में तेजी आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, energy का requirement भी ज़्यादा होना चाहिए. So ये सब basis पर we are going to make a forecast about the commodity का prices and all. Tell me, is everybody comfortable? Sure. Next, commodity valuation दिख रहा है, next head वही है ना आपका. Commodity valuation के ऊपर लिखिए after derivatives, after completing derivatives. There is a formula given in the valuation which I cannot do right now. Derivatives का formula है ये. So once you are done with derivatives, then I will come back to commodity valuation. मैं वापस all type पकड़ूंगा and मैं ये वाला जो एक पेज है वो derivatives के last class में कराऊंगा. So once I'm done with derivatives का last class में this will be there. बोलिए, is everybody comfortable? Commodity valuation you don't need to touch right now. Once I'm completing derivatives, I will myself come back to this and मैं ये part complete कराऊंगा ये part. Clear till here?